So in the last lecture, what we did was we had an introduction about spherical coordinate systems. Then we took a look at how to represent points in spherical coordinate system. Then how to transform points from spherical coordinate system to cylindrical coordinate system, and then further to rectangular coordinate system, and vice versa. After that, there was a bit more complicated thing in which we tried to transform the spherical vector, the vectors which are given in spherical coordinate system into the ones which are mentioned in rectangular coordinate system. The basic topic of today's video is to reverse transform the rectangular transfer the vector which is given in rectangular coordinate system into the vectors uh, in spherical coordinate system. That means that we have to transform vector A, which is given in rectangular coordinates, and we will take that vector and we will transform that vector into one vector which is written in the form of spherical coordinates. So A vector, which is given in rectangular coordinates, as you can see right here, what we will do is we will try to transform this vector into spherical coordinates. For that, we will take a dot product of A with AR. This will give us the value of AR. Similarly, the dot product of A with A theta. This will give us the value of the A theta. And after that, the dot product of A with A phi. This will give us the value of A phi. So this is the main goal of our today's lecture. Apart from this, we will be studying surface area, surface differential length, and volume also, and we will also be looking at some of the examples related to these topics, ताकि ये चीज़ें जो है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए. तो सबसे पहले वही हमारा पुराना जो भी अप्रोच थी उसको लेके चल रहे हैं हम. हमने ए का डॉट प्रोडक्ट लिया ए आर से, थीटा से, फाई से, और उसको इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स लिख लिया. अब आपके पास ए एक्स डॉट ए आर और ए एक्स डॉट ए थीटा और ए एक्स डॉट ए फाई इस टाइप की एंट्रीज अवेलेबल है. यहाँ पे ऑल यू हैव टू डू इज़ दैट यू हैव टू put the values of a r, a theta and a phi that we calculated in last lecture, in last video. We have to put those values in here and we will find what will come in this part of the matrix. जब वो आ जाएगा तो ऑब्वियसली हमारे पास इक्वेशंस जो है वो बन जाएंगी. तो इसके लिए ए आर को हमने देखना है कि हमने इसको कैसे मेंशन करना है. हमने ए आर की वैल्यू पुट करनी है और हमने देखना है कि ये वाला जो पार्ट है इस मैट्रिक्स का, उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास अब क्या बनती है. ठीक हो गया. तो इसके अंदर ए एक्स डॉट ए आर है, तो ए आर की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी. ए एक्स डॉट ए आर है तो इसमें मतलब साइन थीटा कॉस फाई आएगा. तो हम यहाँ लिख लेते हैं साइन थीटा और कॉस फाई. फिर हमारे पास है ए वाई डॉट ए आर. ए वाई डॉट ए आर है तो साइन थीटा साइन फाई, साइन थीटा साइन फाई. फिर हमारे पास है ए जी डॉट ए आर, तो ए आर डॉट ए जी तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा. इसी तरह से ए एक्स डॉट ए थीटा है तो कॉस थीटा कॉस फाई. ए वाई डॉट ए थीटा है, कॉस थीटा साइन फाई. और फिर हमारे पास यहाँ पे है ए जी डॉट ए थीटा, तो वो माइनस साइन थीटा. सिमिलरली ए एक्स डॉट ए फाई है माइनस साइन फाई. ए वाई डॉट ए फाई है यानी कि कॉस फाई. और यहाँ पे ज़ीरो. ये हमारे पास बन गई है matrix for rectangular to spherical transformation. This was pretty easy as compared to the last one because we already knew the value of AR, A theta and A phi in terms of AX, AY and AZ. हमने वो values use की, हमने उनका यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लिया, उससे मैट्रिक्स बनाई, उस मैट्रिक्स से हम यहाँ पे इक्वेशन निकाल लेंगे. AR को हम in terms of AX, AY and AZ लिख सकते हैं. तो हमें AR की वैल्यू क्या मिल जाएगी,
साइन थीटा कॉस फाई ए एक्स प्लस साइन थीटा साइन फाई ए वाई प्लस cos theta az. If we know the value of ax, ay and az, then we have found out the value of ar. Similarly, the value of a theta हम इधर से निकाल लेंगे. Similarly, the value of a phi हम इधर से निकाल लेंगे. All of these values are function of ax, ay and az, and we know the value of ax, ay and az because this is what was given us in the question. जैसे ये ax, ay और az की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी. ठीक हो गया. मूविंग ऑन टू एन एग्जाम्पल. इसके अंदर अगर आप देखो तो यही बिल्कुल एग्जैक्टली यही प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे. वो कहता है एक वेक्टर है जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर दिया हुआ है हमें, a इज इक्वल्स टू एक्स हैट. ये x प्लस वाई बेसिकली यहाँ पे आपको a x की वैल्यू दे रहा है. सिमिलरली y हैट a y जो है आपका वो y माइनस एक्स है. और सिमिलरली z हैट इंटू a z की वैल्यू जो है वो यहाँ पे आपको z मिल रही है. यानी कि a x को अगर आप लिखो तो a x आपके पास x प्लस वाई है. ए वाई को अगर आप लिखो तो वो y माइनस एक्स है. और ए जी को अगर आप लिखोगे तो वो z है. ये आपको वैल्यूज़ जो है वो ऑलरेडी गिवन है. अब वो कहता है इस वेक्टर को आपने ट्रांसफॉर्म करना है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर. कैसे करना है? जो रिलेशन अभी हमने पीछे निकाला है उससे अभी हमने ए आर की वैल्यू निकाली है. ए एक्स साइन थीटा कॉस फाई, ए एक्स साइन थीटा कॉस फाई, ए वाई साइन थीटा साइन फाई, ए वाई साइन थीटा साइन फाई और इसी तरह से आगे ए जी कॉस थीटा. All we had to do was to put the value of ax here. ax की वैल्यू थी x प्लस वाई, हमने यहाँ पुट कर दी. ay की वैल्यू y माइनस एक्स थी, यहाँ पुट कर दी. और az की वैल्यू z थी, हमने यहाँ पुट कर दी. ये हमारा निकल आया ए आर. ठीक है. ए थीटा बिल्कुल ऐसे ही निकाल लेंगे. उसकी इक्वेशन जो भी यहाँ से निकलेगी उस इक्वेशन के अंदर वही ए एक्स ए वाई ए जी की वैल्यू पुट करते जाएंगे. और इसी तरह से ए जी जो है वो ए फाई जो है उसकी भी वैल्यूज़ निकालेंगे. तो अभी ए आर की निकाली है बस हमने, बाकियों में भी आपने बिल्कुल ऐसे ही वैल्यूज़ पुट करते जाना है. तो वो कहता है कि वो वैल्यू हम पुट करते जाएंगे और हमारे पास जो टोटल बन जाएगा इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट वो इस तरह का बन जाएगा. उसके अंदर भी उसने क्या किया है अभी, अगर वो सिर्फ ए आर की बात करे, ए थीटा को इसी तरह से कर लिया, ए फाई को इसी तरह से कर लिया जैसे हमने ये लिखा है. इसके अंदर उसने एक फर्दर काम ये किया है कि उसने एक्स जो थे, जो पॉइंट्स थे, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यूज़ भी उसके अंदर पुट कर दी है. हमें पता था कि हमारा जो एक्स है उसको जब हम लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स तो वो हमने निकाला था पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन में आर साइन थीटा कॉस फाई होता है. इसी तरह वाई जो था वो हमारे पास होता था आर साइन थीटा साइन फाई. और इसी तरह से हमारे पास जी जो होता था वो हमारे पास होता था आर कॉस थीटा. ये हमने कहाँ निकाली थी, मैं आपको दिखाता चलूँ. ये हमने निकाली थी वैल्यूज. ठीक है. तो सिंपल उसने एक्स वाई जी की वैल्यू जो है ना वो पुट कर दी है फर्दर इस इक्वेशन के अंदर. एक्स की वैल्यू में आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई की वैल्यू में आर साइन थीटा साइन फाई, फिर वाई की वैल्यू में आर साइन थीटा साइन फाई, एक्स की वैल्यू में आर साइन थीटा कॉस फाई और जी की वैल्यू में उसने आर कॉस थीटा. अब वो जी और कॉस थीटा पहले ही था तो वो आर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया. ये उसने क्यों किया? क्योंकि वो सिंप्लीफाई करना चाह रहा था. इसको उसने फर्दर इसके अंदर मल्टीप्लाई किया है, सिंप्लीफिकेशन की है ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करते हुए. तो वो यहाँ तक पहुँच गया आर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर कॉस स्क्वायर थीटा. यहाँ से उसने आर को कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर उड़ गया, पीछे बचा हमारे पास सिर्फ आर. तो ये हमारे पास ए आर की वैल्यू आ गई. बिल्कुल इसी तरह से ए थीटा की वैल्यू हमने जो निकाली होगी यूजिंग दिस इक्वेशन, उसके अंदर भी हम एक्स वाई और जी की ये वैल्यूज़ पुट कर लेंगे और उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ए थीटा और इसी तरह ए फाई. तो ये इसका प्रोसीजर है. ठीक है. और ये काफ़ी लेंथी प्रोसीजर है तो ये टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं. जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए जो ट्रांसफॉर्मेशन का हो और स्पेशली जो स्फेरिकल ट्रांसफॉर्मेशन का हो तो आपने इस बात को मद्देनज़र रखना है कि ये बहुत टाइम लेंगे. तो इसके लिए आपने प्रॉपर टाइम जो है वो एलोकेट आपने करना है. ठीक है. वो उसने लिखा है कि जब आप ए थीटा को पुट करेंगे, अभी उसने आर साइन थीटा और
एक्स की वैल्यू जो है वो नहीं पुट की, ना वाई की पुट की है, सिंपल वैल्यूज़ पुट करके उसने कहा है कि वो ये निकलेंगी। इसके अंदर जब वैल्यूज़ पुट करेंगी तो वो कहता है कि ए थीटा सिंप्लीफाई होकर ज़ीरो रह जाएगा और ए फाई सिंप्लीफाई होकर माइनस आर साइन रह जाएगा। तो अब आपके पास ए आर भी आ गया, ए थीटा भी आ गया, ए फाई भी आ गया, उसकी वैल्यूज़ उसने यहाँ पुट की हैं और उसने कहा जी ये हमारा वेक्टर जो है वो ट्रांसफॉर्म होने के बाद ये बचा, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। फिर मूव करेंगे हम डिफरेंशियल लेंथ, सरफेस एरिया और वॉल्यूम वाले पार्ट की तरफ। अब हम एंगल के बारे में पहले से जानते हैं। एंगल के बारे में पहले से क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि एंगल जो है वो साइड को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। जैसे हमने सिलेंड्रिकल के अंदर देखा था, तो हमने ये बोला था कि एक साइड हमारे पास होती थी जो आर डी फाई होती थी, जो हमें ये वाली साइड दिया करती थी। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या सीन है कि इसके अंदर हमारे पास एक साइड ये भी ऐसी है जो डायरेक्टली एंगल पर डिपेंड कर रही है, और ये जो एंगल है वो हमारे पास क्या है, डी थीटा है। ठीक है, और इसके साथ जो हमारा जो लाइन आ रही है, जो चेंज आ रहा है, वो हमारा कैपिटल आर आ रहा है। ठीक है, तो अब वो कहता है कि हमारे पास जो है जो तीन साइड्स बनेंगी, सबसे पहले तो डी एल देखना होता है ना, तो डी एल के लिए हमें तीन साइड्स देखनी होती हैं कि हमारी तीन साइड्स बनेंगी कौन सी। अब आर जो है वो तो एज ए लेंथ है, एक साइड तो हमारी डी आर बन गई। ठीक है, और दूसरी जो है वो हमारे पास ये वाली है, और ये डिपेंड करती है इस लाइन के ऊपर, यानी कि स्मॉल आर के ऊपर। ठीक है, और स्मॉल आर इंटू डी फाई, तो एक साइड हमारी हो जाएगी स्मॉल आर डी फाई, लेकिन हम इसको स्मॉल आर से मेंशन नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि स्मॉल आर का पैरामीटर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में है ही नहीं। लेकिन स्मॉल आर को हमने पहले निकाल के देखा है कि वो हमारे पास होता था आर साइन फाई, आर साइन थीटा, फाई नहीं था, थीटा था, सॉरी, आर साइन थीटा। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं आर डी फाई को इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल पैरामीटर्स? तो आर की वैल्यू पुट कर देंगे, वो क्या होगी, कैपिटल आर साइन थीटा और डी फाई, एक ये हो गई। और थर्ड जो साइड है हमारी वो आर डी थीटा हो गई, उसमें तो सीधा सीधा आर है हमारे पास, और चेंज जो हो रहा है वो थीटा हो रहा है। तो जो तीन साइड्स बनी हमारी वो ये बनी, आर साइन थीटा डी फाई, एक ये, एक आर डी थीटा, एक ये, और एक डी आर जो सिंपल हमारे पास रेडियस था, तो वो लेंथ है, तो वो हम आराम से डी आर के तौर पे मेंशन कर सकते हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट डी एल हेयर, वी विल बी टॉकिंग अबाउट डी आर इंटू, मतलब आर हैट इंटू डी आर प्लस थीटा हैट इंटू आर डी थीटा प्लस फाई हैट इंटू आर साइन थीटा और डी फाई। तो दिस इज द डी एल वेक्टर इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब तक ये चीज़ें इतनी ज़्यादा रिपीट हो गई हैं कि आई होप आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत जो है वो इसको नहीं पड़ेगी। अब आ जाते हैं एरिया की तरफ। एरिया ऑलरेडी जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि तीन एरियाज़ होंगे, तीनों डिपेंड करेंगे कि हम किस डायमेंशन से देख रहे हैं। अब अगर हम इस डायमेंशन से देख रहे हैं ऐसे, तो ये डायमेंशन कौन सी है, फाई वाली डायमेंशन है। ठीक है, अगर हम फाई से देख रहे हैं तो हमें क्या नज़र आ रहा है, एक ये थीटा वाली साइड जो है ये नज़र आ रही है, डी आर वाली साइड नज़र आ रही है, यानी कि देख हम फाई वाली साइड से रहे हैं, नज़र हमें आ रहा है डी आर एक साइड, और दूसरी डी थीटा वाली साइड। डी थीटा वाली साइड हमारे पास कौन सी है, आर डी थीटा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं फाई आर डी थीटा, ये हमारा है डी एस फाई। इसी तरह से अब अगर हम इधर से देख रहे हैं, यानी कि हम आर की डायरेक्शन से देख रहे हैं, तो उसके केस में हमारे पास कौन सी साइड्स नज़र आ रही हैं, एक ये यानी कि डी फाई वाली साइड, एक ये यानी कि डी थीटा वाली साइड। तो डी फाई वाली साइड हमारे पास क्या होती है, आर साइन थीटा डी फाई, और डी थीटा वाली क्या होती है, आर डी थीटा। यानी कि हम अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो हम लिख सकते हैं आर हैट आर स्क्वायर
साइन थीटा डी थीटा डी फाई, एक एरिया वेक्टर हमारे पास ये हो गया। और थर्ड जो एक्सेस हमारे पास बचा है वो बचा है थीटा एक्सेस, ऊपर से देखने वाला एक्सेस थीटे वाले से। इधर से अगर हम देखेंगे तो हमें क्या क्या नज़र आएगा, एक डी आर और एक डी फाई वाली साइड। यानी कि अगर हम थीटा से देखेंगे तो हमें नज़र आएगा डी आर जो है इटसेल्फ एक साइड है, और डी फाई वाली साइड जो आर साइन थीटा है और डी फाई, यानी कि ये मिलके बन जाएगी आर साइन थीटा डी फाई और डी आर। ये तीन एरियाज होंगे हमारे इसके, ठीक है, वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं कि डी एस आर आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। ये अगर आप इधर से क्रॉस वेरीफाई करो तो डी एस आर आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। आर ये जो थीटा वाला है आपका वो आपका बनेगा आर साइन थीटा डी फाई डी आर, ठीक है, आर साइन थीटा डी फाई डी आर। और डी एस फाई जो है आपको यहाँ नज़र आ रहा है वो बनेगा आर डी आर और डी। सिमिलरली अगर आपने डी वी कैलकुलेट करना है डिफरेंशियल वॉल्यूम, तो उसमें आपने तीनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देना है। तीनों साइड्स कौन कौन सी हैं, एक डी आर है, ये मल्टीप्लाई होगी आर साइन थीटा डी फाई के साथ, और फिर मल्टीप्लाई होगी आर डी थीटा के साथ। यानी कि अगर आप इसको इकट्ठा करके लिखोगे तो ये बनेगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई डी आर। ये आपके पास डी वी की एक्सप्रेशन निकलेगी। ठीक हो गया। तो हमने लेंथ भी देख ली, सरफेस एरिया भी देख लिया, वॉल्यूम भी देख लिया, और इन केसेस को हमने डिस्कस भी कर लिया। अब आ जाते हैं एक एग्जांपल की तरफ। ये एग्जांपल जो है आपके पास, ये है एग्जांपल 3-5। तो इसके अंदर आपको वो कहता है एरिया कैलकुलेट करके देना। इसमें उसने आपको उस तरह से मेंशन नहीं किया जिस तरह से आपको सिलेंड्रिकल वाले एग्जांपल के अंदर मेंशन किया हुआ था, जो मैं कह रहा था आई वांट यू टू imagine those things. I want you to imagine this figure by looking at those parameters. तो इसमें उसने डायरेक्टली आपको फिगर ही दे दी हुई है। अब अगर आप इस फिगर को देख के वो पैरामीटर्स निकाल सको तो दैट वुड बी प्रिटी ऑसम। किस तरह से कि आपको उसने जो आर दिया हुआ है वो उसने आपको दिया हुआ है कि 3 सेंटीमीटर है, मतलब आर इज़ स्टिल कांस्टेंट, आर जो है हमारा वो बदल नहीं रहा, यानी कि डी आर ने चेंज नहीं होना। इसका मतलब ये हुआ कि वो एंगल जो है वो सॉरी वो एरिया जो है आपका वो कौन सा देख रहा है, किस एरिया से आपसे किस एक्सप्रेशन वाला एरिया आपसे मांग रहा है, तो वो आप कह सकते हो कि वो आपसे मांग रहा है डी फाई जो बदल रहा है, डी थीटा जो बदल रहा है, ठीक है। और ऑब्वियसली इन साइड्स के साथ क्या आता है, डी फाई के साथ आएगा आर साइन थीटा, और डी थीटा के साथ भी एक आर आएगा जो ये आएगा, ठीक है। तो दिस एक्सप्रेशन इज़ व्हाट ही इज़ डिमांडिंग फ्रॉम यू, ठीक है। तो इसमें से वो आपसे एरिया मांग रहा है। अब आपने ये देखना है कि क्या क्या चीज़ कितनी कितनी चेंज हो रही है। अब अगर आप देखो तो थीटा आपका जो है वो चेंज हो रहा है फ्रॉम 30 डिग्रीज टू 60 डिग्री। सिमिलरली फाई अगर आप देखो तो ये आपको पूरा नज़र आ रहा है कि ये पूरी है, ये आधी नहीं है। इसका मतलब है कि जो फाई आपका है वो आपका 0 से स्टार्ट होकर 2 पाई तक जा रहा है। लिमिट्स आपके पास सामने नज़र आ रही हैं। तो दीज आर दोज पैरामीटर्स जो मैं कह रहा था कि पैरामीटर देख के आपने फिगर आपको इमेजिन कर लेनी चाहिए। अब अगर पैरामीटर गिवन नहीं है तो फिगर देख के आपको पैरामीटर्स का पता लगना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू नीड टू नो दीज पैरामीटर्स। वंस यू नो दीज पैरामीटर्स ओनली देन you will be able to put these limits into your integration signs right here. If you don't have an idea about what these parameters are by looking at this picture right here, then you won't be able to put proper limits in your integrations. And if you don't put proper limits in your integration, then the answer will be incorrect at every cost. तो इसके केस में आपको डबल इंटीग्रेशन नज़र आएगी क्योंकि डी फाई और डी थीटा दोनों हैं। फाई जो है वो आपका 0 से लेके 2 पाई तक जा रहा है, और थीटा जो है वो आपका 30 डिग्री से लेके 60 डिग्रीज तक जा रहा है। कीप इन माइंड यू कैन नॉट पुट दीज वैल्यूज़ हेयर इन डिग्रीज, यू हैव टू कन्वर्ट देम इन
रेडियंस। तो इसको आपने याद रखना है जब भी इसको सॉल्व करना है। इसेंशली आई होप दैट यू नो कि आप जब इसको सॉल्व करने लगोगे तो यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट कि अगर डी थीटा चेंज हो रहा है और यहाँ पे साइन थीटा है तो डी थीटा वाली लिमिट के अंदर, यानी कि 30 से 60 वाली जो लिमिट है उसके अंदर साइन थीटा होगा और डी थीटा होगा। इसी तरह से जो डी फाइव वाली आपकी लिमिट है, इसके साथ आपको कोई फंक्शन फाई का नज़र नहीं आ रहा तो आप उसको बाहर नहीं लेके जा सकते, जैसे थीटा को आप बाहर नहीं लेके जा सकते थे। अभी तो आपको नज़र ही कोई नहीं आ रहा तो आपने सिर्फ डी फाई रखना है और ये आपका 0 से लेके 2 पाई तक जा रहा है। आर हेयर इज़ एब्सोल्युटली कांस्टेंट, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है यहाँ पे जो आर को बदल रही हो, तो ऑब्वियसली ये कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो आपने बस यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन लेनी है, साइन थीटा की इंटीग्रेशन माइनस कॉस उसने यहाँ पे ली हुई है, वैल्यूज उसने पुट कर दी। डी फाई है तो ये तो सिंपली 2 पाई में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आ गया। यहाँ पे आपने सिंपल उसकी वैल्यूज पुट की एंड दिस इज़ योर एरिया। ठीक है, the most important part here is for you to know the limits, for you to know what type of picture he is presenting you and what are the corresponding limits. अगर आपने सही डिसाइड कर ली then you have to compute the integration, that's it, you will calculate the value of s. This is not really as easy as it sounds, but जो इमेजिनेशन है आपकी वो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए और आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आएगी इसकी प्रैक्टिस करते हुए तो आप किसी भी वक्त मेरे से जो है वो उसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल इज चार्ज इन अ स्फेयर। इसमें वो बोलता है कि एक स्फेयर है, अब इसने आपको कुछ नहीं दिया हुआ, ये दिस इज ऑल ही हैज़ गिवन यू। यू हैव अ स्फेयर, इट्स रेडियस इज 2 मीटर, इट कंटेन्स अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो इसने यहाँ पे दी हुई है, फाइंड द टोटल चार्ज क्यू कंटेन्ड इन द स्फेयर। ठीक है, अभी इसके अंदर हमें ये पता है कि जो हमारा लॉ है वो हमें ये कहता है कि रो वी डी वी जो है वो क्यू के बराबर होता है, यानी कि रो वी डी वी ये हमारा डी क्यू के बराबर है, यानी कि अगर हम क्यू निकालना चाहें तो वो हमारा इंटीग्रेशन होगा वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रेशन। अब एक स्फेयर है जिसका रेडियस 2 है, ठीक है, इसका मतलब आर जो है वो आपके पास दिया हुआ है उसने, वो 2 है, उसका रेडियस 2 है और कंप्लीट स्फेयर है तो इसका मतलब है कि थीटा जो है वो आपका 0 से लेकर 2 पाई तक जा रहा है क्योंकि पूरा स्फेयर है। ये आपने खुद निकाली है, डिड्यूस किया है इधर से। फाई जो है क्योंकि कंप्लीट स्फेयर है तो इसका मतलब है वो भी 0 से लेकर 2 पाई तक जाएगा, तभी स्फेयर कंप्लीट होगा वरना स्फेयर कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, और किया क्या है उसने, रो वी की जो एक्सप्रेशन है वो उसने दी हुई है यहाँ पे 4 cos स्क्वेयर। डी वी की एक्सप्रेशन जो है वो हम पीछे देख चुके हैं, वो आपके पास क्या है, आर स्क्वेयर साइन थीटा डी आर डी फाई, वो सारी एक्सप्रेशन उसने लिखी, रो वी की एक्सप्रेशन लिखी, तीनों की तीनों लिमिट्स लिखी उसने। ठीक है, अब हमने करना क्या है, इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे फिर दोबारा जो चीज़ सबसे ज़्यादा ख्याल करने की है वो ये है कि लिमिट के अंदर उसकी प्रॉपर वेरिएबल जो है वो आने चाहिए। ये अगर थीटा की लिमिट है जिसके अंदर आप 0 से, आई एम रियली सॉरी अबाउट वन थिंग, मुझे अभी याद आया कि ये 2 पाई नहीं हो सकती, ये पाई होगी, थीटा हमारी पाई होगी और फाई हमारी 2 पाई होगी। इसकी रीज़न मैं आपको समझाना चाहूँगा। इसकी रीज़न ये है कि अगर फाई आपका घूम रहा है और वो पूरा घूमा है, ठीक है, तो जो थीटा है आपका वो आपका यहाँ से यहाँ तक आएगा। फ़र्ज़ कर लेते हैं, आप एक इमेजिन करें कि आपने ये लाइन ड्रॉ की है और अब ये लाइन जहाँ भी जाएगी ना वो अपना हिस्सा छोड़ेगी, मतलब एक शेडो अपना छोड़ेगी। हमने एक लाइन ड्रॉ की यहाँ से 0 से लेके पाई तक, अब हम इसको अगर एक्स एक्सिस पे फाई की डायरेक्शन में मूव करवाते हैं तो ये अपना एक शेडो छोड़ती जा रही है। ठीक है, तो हमने देखा कि हमने इसको 0 से मूव करना स्टार्ट करवाया, ऐसे 0 से मूव करना स्टार्ट करवाया और जब हम इसको 2 पाई तक लेके आए तो हमारा स्फेयर कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दो कंडीशन हो सकती हैं कि या तो हमारा फाई 0 से पाई तक जाएगा और थीटा हमारा 2 पाई, या फिर
हमारा थीटा 0 से पाई तक जाएगा और फाई 2 पाई तक जाएगा, तो स्फेयर कंप्लीट होगा। अगर हम दोनों को 2 पाई तक लेके जाएंगे तो फिर हम डबलिंग कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये आपने एक इमेजिन करनी है कि एक लाइन है और ये आप इसको जब मूव करोगे इस तरह से तो ये अपना एक शेडो छोड़ेगी। तो आप यहाँ जीरो से इसको मूव करना स्टार्ट करवाते हो और इसका पूरा सर्कल एक कंप्लीट करते हो, तो ये शेडो पूरा छोड़ते छोड़ते एक स्फेयर कंप्लीट कर चुका होगा। ठीक है। तो आई होप वो आपको समझ आ गई होगी कि लिमिट जो है वो 0 से पाई तक कैसे आई। तो डी थीटा की जो लिमिट है वो आपकी 0 से पाई तक होगी। अब आपने देखना है कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जो थीटा से रिलेटेड हैं। साइन थीटा है, कॉस केयर थीटा है, डी थीटा है। ये सब कुछ इस इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा। फिर आप आओगे फाई वाली साइड पे। फाई आपका गया था 0 से 2 पाई तक और उसके अंदर आपके पास सिर्फ डी फाई था, उससे रिलेटेड और कोई चीज़ नहीं है। फिर आप आओगे रेडियस वाले इंटीग्रेशन में, जो आपका 0 से लेके 2 सेंटीमीटर तक था, जो उसने मीटर के अंदर लिखा। तो रेडियस के अंदर क्या क्या आएगा, एक तो डी आर आएगा, उसके अलावा यहाँ पे आपको आर स्क्वायर भी नज़र आ रहा है। ये तीनों इंटीग्रेशंस को आपने सॉल्व करना है और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और आपको जवाब मिल जाएगा। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये सॉल्व करता गया और ये जवाब उसका निकल आया। यहाँ पे जो एक क्वेश्चन की बात है वो दी, ये लिमिट्स हैं और ये है कि किस वेरिएबल को किस इंटीग्रेशन के अंदर हमने लाजमी लेके जाना है। अगर आप इस साइन थीटा को कांस्टेंट समझ के बाहर निकाल लेते तो दिस वुड हैव बीन टेरिबली लॉन्ग। ठीक हो गया। तो दिस वाज द अदर एग्जांपल। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। दिस इज़ इट फॉर टुडे।